محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری پیاری بہنیں اور بھائیوں کو دل سے السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ذی الحجہ کے مہینے کے چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسی مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے، اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا کہ کب محرم مہینہ آئے اور میں محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں، کب محرم کا مہینہ آئے اور میں یہ سورہ 7 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکوں۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں، جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص محرم سے پہلے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، وہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس سورہ کو 7 بار پڑھ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے نا تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو محرم سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب جو شخص محرم سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا، پھر وہ محرم کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا۔ محرم کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے مانگے گا اللہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اور ایک وہ شخص جو محرم سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو محرم کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ محرم کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے اور نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو محرم کا نیا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لی جائے گی، محرم کا چاند نظر آتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ جس گھر میں محرم کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، محرم سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص ہوتے ہیں، یہ دن بھی بڑی قبولیت کے دن ہوتے ہیں، بڑی عظمت والے دن ہیں، بڑی برکت والے دن ہیں۔ خدا را دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ 7 آسمانوں زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں یا پرسوں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ صبح نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہے۔ آپ نے محرم کے چاند کی خبر سننے سے پہلے پہلے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں
हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से एमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। अब अमल क्या है? मुहर्रम का चाँद नजर आने से पहले पहले आपको जब चाहे जैसे वक्त मिल जाए बवज़ू जय नमाज पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ना ये सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। जो भी आप दुरूद पाक पढ़ें आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। माशाल्लाह, उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है अल्लाह ताला। उसके अलावा वो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है, क्योंकि आज जिस मकसद की नियत करके बैठो कि मुहर्रम का नया चाँद निकलते ही वो मकसद पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग ले, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग ले, नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, दुनिया की हर हाजित मकसद जितना मर्जी बड़ा हो अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये स्वयं बारका पढ़ते ही पूरा हो जाता है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। अपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी भी अहम काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करता है तो उसमें हर तरह के ज़मीनी और शैतानी असरात, चाहे वो नजरे बद, नजरे हसद, जादू, जिन्नात की हो, वो ख़त्म हो जाते हैं। मुहर्रम का चाँद नजर आने से पहले जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा पढ़ लेगा, नया महीना शुरू होते ही एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा जिसमें ना दुख होंगे, ना परेशानियां होंगी, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? और जिस काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाती है उसमें अल्लाह की खैर आ जाती है, उसमें अल्लाह की तरफ से बरकतें आ जाती हैं, उसमें अल्लाह के हिफाजती इक़दामात आ जाते हैं, अल्लाह की हिफाजत आ जाती है और ज़िंदगी आसान हो जाती है, कामयाबी आसान हो जाती है। इसलिए आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगली पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। इस अमल को आपने बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना है। बाज़-औक़ात इंसान पढ़ते हुए कम या ज़्यादा पढ़ जाता है, इसलिए कोशिश करें कि आप गिन कर सिर्फ 21 बार ही पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 बार पढ़ते दौरान आपके दिल में जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी मकासद हैं, जो भी हाजात हैं, जो कुछ भी आप अल्लाह करीम से मांगना चाहते हैं, दिल ही दिल में मांगते चले जाएं। आपको महसूस हो जाएगा कि आप वाकई अपना तमाम तंग दस्तियों से, परेशानियों से निकल रहे हैं। आपके दिमाग को सुकून मिल रहा है, दिल की बेचैनी ख़त्म हो जाएगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह को राज़ी करना कितना आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 21 बार पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है, जिसे सूरत शिफा भी कहा जाता है, जिसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है। वो अजीम सूरह मुबारका कौन सी है? वो सूरत फातिहा है, जिसे अल फातिहा भी कहा जाता है। ये कुरान की पहली सूरत है। सूरह फातिहा की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सूरह फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अकबरीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा खाना शुरू करे तो खाना खाते वक्त बातें ना करें, जुबान से खाना खाता रहे और दिल ही दिल में 7 बार सूरह फातिहा पढ़ ले तो वो खाना नूर बन जाता है, वो खाना शफा बन जाता है, वो खाना तेजाबियत से भरपूर होने के बावजूद शिफा बन जाता है। सूरह फातिहा के कमालात, सूरह फातिहा के मोजज़ात बताना शुरू कर दूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूँगी कि मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले आपने सूरह फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 का अदद याद रखिएगा, हफ्ते के दिन भी 7, आसमान भी 7, ज़मीनें भी 7, और जब आप मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले 7 बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो अल्लाह 7 आसमान और 7 ज़मीनों का रिज़्क़ आपके मुक़द्दर में लिख देगा। जो शख्स कहता है कि मुझे वजीफ़ों का कभी फ़ायदा नहीं हुआ, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, वो एक बार मुहर्रम का चांद नज़र आने से पहले इस एक कुरानी सूरत को 7 बार पढ़कर हाथ उठाकर अल्लाह से मांगे, जो मांगेगा मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बस रब करीम से जिद करके मांगने वाला होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, सूरह फातिहा को 7 मरतबा पढ़ने का मतलब है कि 7 बार पढ़ना है, जल्दबाजी से नहीं पढ़ना, मोहब्बत और अकीदत से पढ़ना है। सूरह फातिहा अल्लाह का शुक्र भी है, सूरह फातिहा सिरातुल मुस्तकीम की तलकीन भी है, सूरह फातिहा अल्लाह को राज़ी करने का, अल्लाह को मनाने का एक खास राज भी है। 7 बार सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफा जो पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह के सिफाती नाम का वजीफा है। वो सिफाती नाम या गनीयू है, जो पढ़ने वाले को गनी कर देता है, जो फकीर को बादशाह बना देता है, जो गैब से रिज़्क़ और दौलत की तमाम बंदिशों का खात्मा कर देता है, और जो कहता है कि मेरा रोजगार नहीं खुलता, जो कहता है कि मैं नस्ल दर नस्ल कई सालों से गुर्बत का शिकार हूँ, वो मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ने के बाद या गनीयू को पढ़ ले। जो शख्स ये अमल करेगा उस पर नज़र खास हो जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर खासे करम की नज़र हो जाए तो आप या गनीयू को पढ़ लें। यह अल्लाह करीम की वो सिफत है। अल्लाह फरमाता है कि मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ गनी कर दूँ और जब चाहूँ जिसे चाहूँ फ़कीर कर दूँ। और अल्लाह फरमाता है जब कोई शख्स मुझसे दुआ करता है, कुरानी अमल पढ़ते हैं, कोई जिक्र करता है, तो मुझे शर्म आती है कि मैं इस बंदे की हाजत को पूरा ना करूं। हमारे मांगने में गलती हो सकती है, हमारे पढ़ने में कोताही हो सकती है, अल्लाह की दीन में किसी भी तरह की कोई कमी पेशी नहीं। इसलिए मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले आपने या गनीयू को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या गनीयू 1 बार हो गया, या गनीयू 2 बार हो गया, या गनीयू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या गनीयू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या गनीयू पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। आपके दोनों कंधों पर मौजूद फरिश्ते जब अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, आपके नामे अमाल को पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है बताओ आज मेरे बंदे के क्या अमाल है। नेकी वाला फरिश्ता कहता है कि आज उसने या गनीयू को पढ़ा है। बदी वाला फरिश्ता कहता है कि आज उसने आपकी सिफत या गनीयू को पढ़ा है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह रहना मैं इस बंदे से राजी हूँ। या गनीयू पढ़कर इस बंदे ने जिस नेक जायज़ हाजत की ख्वाहिश की है उसे फरिश्तों जाओ उस बंदे की हाजत को पूरा फरमा दो। यह है मुहर्रम की आमद। अल्लाह इन खास कबूलियत की घड़ियों में इतना खुश है। इस वक्त अल्लाह से जो भी मांगोगे मिल जाएगा, जितना मांग सकते हो मांग लो, क्योंकि मुहर्रम का चांद नया इस्लामी साल आपके लिए खुशियाँ ला रहा है, खुशहालियाँ ला रहा है, रहमतें ला रहा है, बरकतें ला रहा है। दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर आपने मुहर्रम का चांद देखकर या चांद देखने से पहले ये 3 अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने हैं, ज़रूर पढ़ने हैं। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेंगे तो आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर फिर से 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। इस वजीफे को पढ़ने के बाद अल्लाह करीम से दुआ मांगिए। नाजरीन ये ऐसा वजीफा है कि आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होगी। ये इंतहाई ताकतवर है। इस वजीफे की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने फजलो करम से माली तंगदस्ती से भी निजात देगा और आपको खुशखबरी भी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और ये अमल आपने अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल
یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔